Hello my dear friends, I am Professor Wayam Khan and this is the part 6 of unit number 2 phase diagrams of subject materials and metallurgy. In today's video we are going to start the study of iron carbon diagram, which is also known as iron carbide diagram or iron carbon diagram. Okay, now this is very important topic of this subject because in every examination there is some part which is always asked from this iron carbon diagram. Okay, so without wasting much of time we will begin with our today's video. So the iron carbon, or also known as iron carbide or Fe3C phase diagram, in the simplest form, steels and cast irons are alloys of iron and carbon. All of you know that steel or a cast iron are an alloys of iron when mixed with carbon. Now this iron carbon mixture is having certain amount of carbon present in it. Okay, now this amount varies. For steel it varies from 0.008 to 2% if the iron and carbon alloy, if that carbon percentage is up to 2%, then that specific alloy is called as steel, and if that percentage is more than 2%, up to 6.67 or 6.7%, then that specific alloy is called as cast iron. Okay, so that is the basic difference between steel and cast iron. Okay, then there are the different properties of steel, different properties with respect to cast iron. Cast irons are brittle, they are more harder, whereas steels are ductile, malleable, and they are softer as compared with the cast iron. Now this iron carbon phase diagram is a fairly complex one, but the part that we are going to study for this iron carbon diagram is up to 6.67% of carbon. हम 6.67% कार्बन तक का जो पार्ट है वही इस आयरन कार्बन डायग्राम में का हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. ओके, चलो ठीक है, तो लेट अस बिगिन. हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज a typical iron carbon diagram. This diagram is having various sections, various parts, various reactions, various phases, various temperatures involved in it. Okay, remember this diagram is plotted for an alloy of iron and carbon. That means on your x-axis the percentage of carbon will be mentioned. That means weight percent of carbon will be written on x-axis, it is called as composition, and on y-axis the temperature of the alloy or the temperature of the mixture will be mentioned here. Now on the left hand side the metal which is present is iron, that is Fe, and on right hand side the metal which is present is carbon. So as we move on the right side of this diagram, the amount of carbon increases. That means carbon is 0 here, at this point it will be 1%, at this point it will be 2%, and at the end it is 6.7%. So as we move on the right side of this diagram, the carbon percentage goes on increasing. Similarly, as we move upwards in this डायरेक्शन, जैसे जैसे हम ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीजिंग, और यू कैन से डायरेक्टली द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे राइट में जाएंगे जो परसेंटेज है कार्बन का वो बढ़ता जाएगा. ओके, ये चीज ध्यान में रखना. अब ये जो सबसे टॉप मोस्ट वाला कर्व आपको दिख रहा है, जो जहां से शुरू हो रहा है 1538 1539 डिग्री सेल्सियस से जो शुरू हो रहा है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द कर्व इज मूविंग लाइक दिस and it's moving like this. So this specific curve is
द लिक्विडस कर्व ऑफ दिस आयन कार्बन डायग्राम। इसको हम लिक्विडस कर्व बोलते हैं इस आयन कार्बन डायग्राम का। अब हम किस कर्व को लिक्विडस कर्व बोलते हैं? जिस लाइन के, जिस कर्व के ऊपर अगर पूरा मेटल, पूरा अलॉय अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडस बोलते हैं, लिक्विडस कर्व या लाइन बोलते हैं। सो दिस इज योर लिक्विडस कर्व विच इज above which the total metal present in it is in liquid state. So this is the melting point of your iron. Then as we go on this direction, as we go on decreasing, the temperature also decreases. So the metal above this line is in liquid state, okay, and below that line it will get converted into solid. At some point it will be some percentage of solid, at some point it will be some more percentage of solid, and below this line it will be completely solid, and at room temperature it will be completely in solid state. Okay, so this is overall the you can say overall the things that are involved in your iron carbon diagram. Now let us start with one by one portion at a time. We'll study one portion at a time, then we'll get all the things that are involved in this diagram. We'll study them one by one. So first is that we have to study three different parts of this diagram. When I'm saying parts, that does not mean this section or this section or this section. When I'm saying parts, it means various things involved in this iron carbon diagram. So first thing that is involved in this iron carbon diagram is phases in FEC diagram. इस diagram में जो phases आयन और कार्बन की हमको मिक्सचर फॉर्म में, सेपरेट फॉर्म में देखने मिलती है, ये phases हमको क्या करना है? स्टडी करना है। जैसे कि ये लिक्विड फेज है, ओके, दिस लिक्विड इज मिक्सचर ऑफ आयन एंड कार्बन, ओके, सो ये एक फेज हो गई। उसी तरीके से ये Fe3C है, यहाँ पर गैमा है, यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर अल्फा है। सो दीज आर वेरियस फेजेस involved in this iron carbon diagram. So we have to study them one by one. Then second, we have to study the transformations or reactions involved in this iron carbon system. अब ट्रांसफॉर्मेशन या रिएक्शन क्या रहता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे ये लिक्विड है, ये लिक्विड को अगर मैं कूल करूंगा तो वो किसी एक स्पेसिफिक मेटल में कन्वर्ट होगा, किसी दो स्पेसिफिक मेटल में कन्वर्ट होगा, व्हाटएवर जो भी इसका रिएक्शन का पॉइंट रहेगा, उस रिएक्शन के पॉइंट के हिसाब से, उस रिएक्शन के कंपोजिशन, टेम्परेचर के हिसाब से वो मेटल या लिक्विड जो भी कन्वर्जन होने वाला है एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में, किसी एक लिक्विड का दूसरे solid 1 solid 2 में. So these reactions, these transformations, when the phases are changing, okay, when the phases are changing is called as your transformations or reactions in iron carbon system. And the next thing that we have to study is critical temperatures. So these critical temperatures are the temperatures at which phase change occur. ओके, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे हमको फेज में कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं, किसी सॉलिड फेज का किसी दूसरे सॉलिड फेज में कन्वर्जन होता है, किसी लिक्विड का किसी सॉलिड फेज में कन्वर्जन होता है. सो दीज आर दी critical temperatures. So we'll study first phases. So before going to that, I'll briefly explain to you this diagram. ये diagram कैसे draw करना है ये मैं आपको explain करता हूँ. तो आप पहले x और y एक्सिस बना लीजिए, उसके ऊपर ये मार्किंग कर लीजिए, ये टेम्परेचर की मार्किंग कर लीजिए. देन स्टार्ट विद दिस अपर पोर्शन. इसको छोटा सा एक ट्रायंगल के जैसा आपको यहाँ पर बनाना है. ओके, यू हैव टू ड्रॉ स्मॉल ट्रायंगल हियर. इस तरीके से अगर लाइन है तो उसके साथ ऐसा आपको छोटा सा एक ट्रायंगल बनाना है. देन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. ओके, देन यहाँ से एक दूसरी लाइन इसके मिडल में कनेक्ट करना है, वही लाइन आपको आगे ले जाना है. देन दिस लाइन यू हैव टू मूव ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से इस तरीके से आपको क्या करना है, एक दूसरी लाइन कनेक्ट करना है इस नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को. ओके, सो ये हमारा पहला रीजन तैयार हो जाएगा. दिस इज पेरिटेक्टिक रीजन या पेरिटेक्टिक एरिया. इसमें पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके लिए इसको मैं पेरिटेक्टिक बोल रहा हूँ, या इसको हम डेल्टा रीजन भी बोलते हैं बिकॉज डेल्टा आयन इज प्रेजेंट हियर. देन यहाँ से आपको इस तरीके से नीचे आना है
ओके, देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। ओके, देन इस तरीके से ड्रॉ कीजिए छोटा सा पोर्शन एंड देन अगेन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यही लाइन से थोड़ा सा नीचे का पोर्शन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, तो थोड़ा सा रफली ड्रॉ किया है इसलिए। सो इसको आप हल्के से थोड़ा सा स्पेस नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसको कनेक्ट कर दीजिए। सो दिस इज अगेन अनदर पोर्शन, ये है हमारा यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन। ओके, और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आखिरी में कुछ लाइंस इसी तरीके से ड्रॉ करना है। सो दिस इज योर थर्ड रीजन विच इज यूटेक्टिक रीजन, ये है हमारा यूटेक्टिक पोर्शन। ओके, सो इस तरीके से हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर ड्राइंग दिस हमको जो अलग अलग चीज़ें इसके ऊपर मार्क करना है, तो वो मार्किंग मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर यू हैव टू मार्क लिक्विड, सो दिस इज लिक्विड रीजन। ओके, देन उसके नीचे अगर आप आएंगे तो दिस इज गैमा प्लस Fe3C। ये Fe3C क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके नीचे अगर आप आएंगे सो दिस इज अल्फा प्लस Fe3C। Fe3 इज नथिंग बट सीमेंटाइट, जिसको हम कार्बाइड भी बोलते हैं। ओके, ऑन लेफ्ट साइड ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारा अल्फा प्रेजेंट है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारा गैमा प्रेजेंट है, और ये वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इसमें हमारा डेल्टा प्रेजेंट है। जब हमने लीवर रूल स्टडी किया था तो हमने कुछ आइसोमॉर्फस डायग्राम का स्टडी किया था। इस आइसोमॉर्फस डायग्राम में कुछ इस तरीके से एक लूप हमने स्टडी किया था। लूप के ऊपर के साइड में लिक्विड, नीचे के साइड में सॉलिड था, और लूप के बीच में लिक्विड प्लस सॉलिड था। मतलब जो दो फेजेस जो एक दूसरे से सेपरेट हो रही है इस रीजन में, इस स्पेसिफिक रीजन में हमको वो दोनों भी फेजेस क्या दिखती है, कंबाइंडली साथ में नजर आती है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर ये लिक्विड पोर्शन है, ये वाला ऊपर का, ये वाला जो पोर्शन है ये गैमा ऑस्टेनाइट है। अब ये दोनों पोर्शंस जो है ये एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ दिस लूप, और यू कैन से इस ये जो इतना रीजन है इस रीजन से वो दोनों भी एक दूसरे से सेपरेटेड है। बट इस रीजन में ये गैमा ऑस्टेनाइट भी रहेगा, साथ ही साथ में ये लिक्विड भी रहेगा। सो इसीलिए यहाँ पर गैमा प्लस लिक्विड इस तरीके से लिखा है। ओके, सिमिलरली जब ये अल्फा फेज है या ये अल्फा रीजन है जहाँ पर अल्फा आयन का प्रेजेंस है, अल्फा फेराइट का प्रेजेंस है, और यहाँ पर गैमा ऑस्टेनाइट का प्रेजेंस है, तो ये गैमा है, ये अल्फा है, इन दोनों के बीच का ये ट्रायंगुलर रीजन है। इस रीजन में गैमा और अल्फा साथ में प्रेजेंट रहेंगे, आया ध्यान में। सो जो दो रीजन्स रहेंगे जो भी सेपरेटेड रहेंगे, एक स्पेसिफिक दो फेजेस रहेंगी जो कि एक रीजन से सेपरेटेड रहेगी, तो वो रीजन में वो दोनों भी फेजेस प्रेजेंट हमको देखने मिलती है। सिमिलरली ये जो छोटा सा ट्रायंगुलर पोर्शन है यहाँ पर डेल्टा है। ओके, यहाँ पर गैमा है इस बड़े पोर्शन में, तो ये डेल्टा ये गैमा, इन दोनों के बीच का ये छोटा सा ट्रायंगुलर रीजन, यहाँ पर डेल्टा प्लस गैमा प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा है, इस लाइन के ऊपर लिक्विड है, तो इस लिक्विड पोर्शन से ये डेल्टा वाला पोर्शन इस रीजन से सेपरेटेड है, तो इस रीजन में डेल्टा प्लस लिक्विड प्रेजेंट रहेगा। सो यहाँ पर मुझे देखने मिलता है यहाँ पर डेल्टा प्लस लिक्विड। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जो है ये लिक्विड रीजन है, या इस साइड में जो है वो हमारा सीमेंटाइट है Fe3C, तो यहाँ पर लिक्विड प्लस Fe3C मतलब कार्बाइड साथ में प्रेजेंट है। ओके, सो लाइक वाइज सभी जगह पर ये ऐसे हमको कंबाइंड फेजेस देखने मिलेंगी, पर हमको जो इसमें फेज स्टडी करना है वो जो प्योरली सिंगल फॉर्म में है, मतलब सेपरेट है। जैसा ये लिक्विड है, ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है, ये टोटल हमारा आयन और कार्बन का लिक्विड फॉर्म है। उसी तरीके से हमको एक और सिंगल फेज देखने मिलती है जो कि है गैमा ऑस्टेनाइट। साथ ही साथ में हमको एक सिंगल फेज देखने मिलती है जो कंबाइंड स्टेट में नहीं है, दैट इज योर अल्फा फेराइट। अगेन वी सी वन मोर सेपरेट फेज, ओके, दैट इज डेल्टा आयन। So this delta ion, this gamma austenite, this alpha ferrite, okay, this liquid,
दिस सिमेंटाइट Fe3C, यहाँ पर Fe3C सेपरेट फेज में है। सो जो सेपरेट फेज में प्रेजेंट है ऐसे फेजेस हमको क्या करना है, सेपरेट स्टेट में प्रेजेंट है ऐसी फेजेस हमको क्या करना है, अभी स्टडी करना है। ओके, यहाँ पर पेरिटेक्टिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर यूटेक्टिक रिएक्शन होती है और यहाँ पर यूटेक्टॉइड रिएक्शन होती है। ये तीनों भी रिएक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट्स लिखे दिख रहे हैं 2, ये 4.3, ओके, ये 0.25, ये 0.8, उसके बाद में यहाँ पर 0.018। सो दीज पॉइंट्स आर नथिंग बट परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे जो कार्बन का परसेंटेज है वो हमको यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है। सो दिस इज ओवरऑल योर आयन कार्बन डायग्राम। लेट अस बिगिन विद द फेजेस। सो फेज नंबर 1 इज योर अल्फा फेराइट। जो पहली फेज हमको स्टडी करना है दैट इज अल्फा फेराइट। ओके, सो आपको कहाँ दिखता है अल्फा फेराइट? वी आर मूविंग फ्रॉम नाउ डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस स्पेसिफिक रीजन, ये जो छोटा सा गैप है इस वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच का, ये है हमारा अल्फा फेराइट। देखो ध्यान में रखना, कभी भी जो पॉइंट इस डायरेक्शन में है, जो भी अलॉय, जो भी मेटल इस डायरेक्शन में है, इसका परसेंटेज इस पोर्शन में ज़्यादा रहेगा और इस पोर्शन में कम रहेगा। वहीं पर जो मेटल इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है या इस जगह पर प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर कम रहेगा। सिंस हियर फेरस is written, that means iron is present here. Now that iron is having more percentage near to y axis. Okay, now therefore ये जो भी फेज हमको इसके नजदीक दिखेगी वो रहेगी फेराइट। So this is your alpha ferrite which is a stable form of iron at room temperature. ये stable form है आयन का रूम टेम्परेचर पे, जिसको हम बोलते हैं अल्फा फेराइट। ओके, दिस इज योर अल्फा फेराइट। दिस पोर्शन, यहाँ पर हमको अल्फा फेराइट देखने मिलता है। नाउ दिस अल्फा फेराइट इज सॉल्यूबल, और यू कैन से कार्बन इज सॉल्यूबल इन दिस अल्फा फेराइट अप टू 0.025%। अब ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मुझे कहाँ देखने मिलेगी? ये कर्व जिस तरीके से मूव हो रहा है, अगर ये इस तरीके से मूव हो रहा है, इस तरीके से इसका शेप है, तो ये शेप में सबसे राइट साइड वाला जो पॉइंट रहेगा इस शेप में, जैसे कि ये शेप है, ये ऐसा ट्रायंगल की जैसा शेप दिख रहा है। ओके, सो ये जो ट्रायंगुलर शेप है या इस टाइप का जो शेप है, इसमें जो सबसे राइट वाला पॉइंट रहेगा दैट विल बी द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट फेज इन कार्बन, मतलब सॉरी ऑफ दैट कार्बन इन दैट फेज। उस कार्बन का मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ये इस राइट वाले पॉइंट पर देखने मिलेगा, जैसे कि ये वाला पोर्शन है। सो इस पोर्शन के लिए, इस फेज के लिए मैक्सिमम कार्बन जो इसमें सॉल्युबल हो सकता है दैट इज गिवन बाय दिस पॉइंट। ओके, एंड दिस पॉइंट, इसको दो रेफरेंस चीजें हैं, एक है रेफरेंस टेम्परेचर और दूसरा है रेफरेंस कंपोजिशन। सो 2% मैक्सिमम 2% गैमा ऑस्टेनाइट इज सॉल्युबल इन maximum 2% of carbon is soluble in gamma austenite at say 1149 degree Celsius. Similarly, ये जो अल्फा फेराइट है इट इज मैक्सिमम सॉल्युबल, इसमें कार्बन जो मैक्सिमम सॉल्युबल है इट इज 0.025% at 727 डिग्री सेल्सियस। ये A1 जो लाइन दिख रही है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस फेज डायग्राम का। इसको 727 डिग्री सेल्सियस में अगर बोलूँ तो इस 727 डिग्री सेल्सियस पे जो कार्बन मैक्सिमम सॉल्युबल है अल्फा फेराइट में, मींस अल्फा फेराइट में कार्बन मिक्स होता है एट मैक्स 0.02%। ओके, अब यही अल्फा फेराइट जब और हीट किया जाता है अबो 727 डिग्री सेल्सियस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। ओके, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में इसका कन्वर्जन होता है और वो कन्वर्जन होता है 912 डिग्री सेल्सियस पे। सो इट ट्रांसफॉर्म्स टू फेस कार्बन सेंटर्ड gamma austenite and at 912 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ इफ यू सी दिस फेज, अगर इस फेज को हमने
माइक्रोस्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखें, अगर इसको हमने स्टडी किए, इसको टेस्ट अगर किए, सो इट इज relatively soft and ductile phase because the percentage of carbon is very less here. कार्बन जितना कम है उतना कम मेटल हार्ड रहता है. ओके, ये चीज ध्यान में रखना, जितना ज्यादा कार्बन है उतना ज्यादा मेटल हार्ड और ब्रिटल बनेगा. सो यहाँ पर आयन ज्यादा है एंड कार्बन इज लेस. सो देयरफॉर द amount the alpha ferrite phase is relatively soft and ductile. Its hardness is approximately equals to 80 Brinell hardness number BHN. Okay, it is ferromagnetic up to 768 degree Celsius, 768 डिग्री तक वो ferromagnetic है, and it becomes paramagnetic above 768. ferromagnetic मतलब उसके अंदर हमको magnetism देखने मिलता है. It shows magnetism. Okay, and at this 768 degree Celsius where the alpha ferrite changes from ferromagnetic to paramagnetic or from paramagnetic to ferromagnetic, this temperature is called as Curie temperature. ये alpha ferrite ये वाला portion है. Okay, this is your alpha ferrite. Okay, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी फेज में भी चेंज आएगी. सो ये अल्फा फेराइट इट विल गेट कन्वर्टेड टू गैमा ऑस्टेनाइट. ओके, सिंस गैमा ऑस्टेनाइट दूसरी फेज हमको यहाँ पर देखने मिल रही है, सो विल स्टडी गैमा ऑस्टेनाइट नेक्स्ट. सो नेक्स्ट फेज इज गैमा ऑस्टेनाइट विच इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन FCC गैमा आयन. देखो, हमने कूलिंग कर्व स्टडी किया था. आयन का कूलिंग कर्व हमने कुछ इस तरीके से स्टडी किया था, बराबर है. इस तरीके से कुछ उसका डायग्राम था. तो यहाँ पर डेल्टा प्रेजेंट था, यहाँ पर गैमा प्रेजेंट था, देन यहाँ पर अल्फा था, देन यहाँ पर दूसरा अल्फा था, बराबर है. इस तरीके से कुछ हमने वो डायग्राम स्टडी किए थे. सो दिस इज डेल्टा विच इज प्रेजेंट एट हायर टेम्परेचर. दिस इज गैमा आयन, दिस इज अगेन दिस इज आयन कूल सॉरी मेल्टिंग. ये हमारा कूलिंग कर्व है आयन का. सो जैसा हमने आयन को मेल्ट किया वैसे हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं. सो जैसे जैसे सॉलिडिफाई कर रहे हैं अलग अलग फेजेस हमको यहाँ पर देखने मिल रही है. सो दिस इज योर डेल्टा आयन, दिस इज गैमा आयन, दिस इज अल्फा आयन, दिस इज अगेन अल्फा आयन विच इज मैग्नेटिक, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, लाइक दिस. ओके, नाउ दिस ऑस्टेनाइट, सिंस इस पूरी सिस्टम में हमारे साथ आयन तो है ही है, साथ ही साथ में क्या है, कार्बन भी प्रेजेंट है. सो देयरफॉर हम क्या करते हैं कि इस ऑस्टेनाइट को जब स्टडी करते हैं, सो इट मीन्स दैट दिस गैमा आयन इज कंबाइंड विथ योर कार्बन एंड दैट गैमा आयन कंबाइंड विथ कार्बन इज कॉल्ड एज गैमा ऑस्टेनाइट और सिंपली ऑस्टेनाइट. सो देयरफॉर गैमा ऑस्टेनाइट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन. अब इंटरस्टिशियल मतलब जो खाली स्पेस रहेगी दोनों आयन के एटम्स के बीच में, तो ये स्पेस क्या करेगा, कार्बन ऑक्यूपाई करेगा. सो उनका क्या बनेगा, वहां पर अलॉय फॉर्म होगा एंड दैट अलॉय इज नथिंग बट गैमा ऑस्टेनाइट. ओके, नाउ दिस गैमा ऑस्टेनाइट इज प्रेजेंट इन दिस रीजन. ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पर एक छोटा ट्राइंगल है, ये वाला इतना रीजन जो है, ये पतंग के जैसा जो शेप है, काइट लाइक शेप. सो दिस इज योर गैमा ऑस्टेनाइट. ओके, नाउ दिस गैमा ऑस्टेनाइट इज हैविंग द कार्बन that is maximum soluble in this gamma austenite is 2%. 2% तक वो मैक्सिमम सॉल्यूबल है कार्बन इसके अंदर, और वो भी 1147 डिग्री सेल्सियस पर, मीन्स इस टेम्परेचर लाइन पर. एट दिस टेम्परेचर लाइन द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इज 2%. ओके, नाउ अगेन दिस गैमा इज अ सॉफ्ट मैलिएबल एंड नॉन मैग्नेटिक फेज. सिंस अल्फा फेराइट हैज लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म अबोव 768, तो 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो भी फेज रहेगी इट विल बी नॉन मैग्नेटिक फेज. ओके, सो इट इज सॉफ्ट, इट इज नॉन मैलिएबल, इट इज नॉन मैग्नेटिक एंड इट ट्रांसफॉर्म्स टू BCC डेल्टा फेराइट एट 1400 डिग्री सेल्सियस. तो ये है हमारा 1400 डिग्री सेल्सियस का लाइन. इसके ऊपर इस गैमा ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन हो जाता है डेल्टा फेराइट में. ओके, नाउ दिस डेल्टा फेराइट इज अनदर
form of the iron and carbon alloy. Okay, now this delta ferrite is present at higher temperatures above than 1400 degree centigrade. Now this austenite is very important for us, क्योंकि ये ऑस्टेनाइट से ही हम बहुत सारे हमारे स्टील और कास्ट आयरन के अलॉयज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. ओके, सिंस इट इज नॉट स्टेबल बिलो यूटेक्टिक टेम्परेचर, ये 727 डिग्री सेल्सियस से नीचे बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता. ये ऑस्टेनाइट जो है इट इज अ सॉलिड फेज, रिमेंबर दैट थिंग. मैं सॉलिड फेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ. ये एक सॉलिड फेज है. ओके, और यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक सॉलिड फेज से दो नई सॉलिड फेजेस हमको क्रिएट हुई हुई मिलती है. सो दिस सॉलिड वन गेट्स कन्वर्टेड बिलो दिस टेम्परेचर लाइन, बिलो दिस स्पेसिफिक पॉइंट इनटू solid 2 and solid 3. Sorry, this is eutectoid this is eutectic temperature, and below this temperature line the transformation happens and the solid 1 gets separated, solid 2 and solid 3 gets separated from each other from solid 1. solid 1 से उनका डिकम्पोजिशन होता है, सेपरेट हो जाते हैं अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट में, Fe3C में. ओके, दिस इज योर गैमा ऑस्टेनाइट. नाउ नेक्स्ट वन हियर इज योर डेल्टा फेराइट. वो है मेरा डेल्टा फेराइट. Now this delta ferrite is an interstitial solid solution of carbon in BCC delta ion. जो डेल्टा आयन प्रेजेंट है हायर टेम्परेचर्स पे, ये डेल्टा आयन बताया ना मैंने. सो इस डेल्टा आयन के साथ में कार्बन कंबाइन होता है एंड इट फॉर्म्स डेल्टा फेराइट. नाउ दिस डेल्टा फेराइट इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन BCC डेल्टा आयन. ये जो भी BCC फॉर्म का डेल्टा आयन रहेगा, इसके साथ में कार्बन कंबाइन होगा, वो भी इंटरस्टिशियल साइट्स पे, जो खाली जगह रहेगी वहां पे, एंड इट विल फॉर्म डेल्टा फेराइट. नाउ दिस डेल्टा फेराइट इज हैविंग सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ अल्फा फेराइट. अल्फा फेराइट की जैसे ही उसका स्ट्रक्चर है, बट इट इज स्टेबल अबव 1400 डिग्री सेल्सियस एंड इन बिटवीन 1539 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी आयन है इट मेल्ट्स. वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. So these are the three important phases of this ion carbon diagram, and moving ahead we'll see the next phase, which is the carbide or Fe3C. So this Fe3C is present in this right region. ये जो right side का portion है ना, इसमें वो present है, तो इसीलिए यहाँ पर cementite लिखा है. Okay, this region or the cementite is present. Now this carbide or this cementite is an intermetallic compound which is metastable and it remains as a compound indefinitely at room temperature T. ये एक compound है actual में Fe3C. It is a compound, intermetallic compound which is formed at higher percentages of carbon. जहाँ पर कार्बन का ज़्यादा परसेंटेज है वहाँ पर ये फॉर्म होता है, एंड बट इट कैन डिकम्पोज वेरी स्लोली विद इन सेवरल ईयर्स इनटू अल्फा फेराइट. उसका कन्वर्जन हो जाता है अल्फा फेराइट एंड कार्बन के ग्राफाइट्स में एट 650 to 700 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, नाउ द कार्बन कंटेंट ऑफ दिस Fe3C इज 6.6% बाय वेट. मतलब 6.6% इज वेरी हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ए हार्ड फेज. इट इज वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल फेज. आपने सुना होगा कई बार कि कार्बाइड की टिप्स हम यूज करते हैं कटिंग टूल्स के ऊपर. सो वो कार्बाइड की टिप और दूसरा कुछ नहीं है, यही वो कार्बाइड है. इट इज फेरोमैग्नेटिक अप टू 210 डिग्री सेल्सियस. 210 डिग्री तक वो फेरोमैग्नेटिक है, उसके ऊपर नॉन मैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक वो फेज हो जाती है. सो दिस इज योर सीमेंटाइट विच इज प्रेजेंट ऑन दिस लाइन 6.67%. ओके, and now these are the 4 important phases of this ion carbon diagram. We'll quickly revise them. Okay, so carbon is an interstitial impurity in iron. जो भी स्टील है उसके अंदर वो इंटरस्टिशियल
इम्प्योरिटी बोल के रहता है, इट फॉर्म्स अ सॉलिड सॉल्यूशन विथ अल्फा गैमा एंड डेल्टा फेजेस ऑफ आयन। अल्फा के साथ में, गैमा के साथ में, डेल्टा के साथ में अलॉय फॉर्म करता है। इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो है BCC अल्फा फेराइट में इट इज़ 0.025, गैमा ऑस्टेनाइट में 2%, ओके। देन maximum solubility in FCC austenite is 2.14% और it is also said 2% at 1147 degree Celsius. The mechanical properties के बारे में अगर बात करें तो cementite is very important here, which is very hard and brittle material. It can strengthen steels. Then mechanical properties also depend on the microstructure, that is how ferrite and cementite are mixed. ये जो दिख रहा है, ये combined mixtures जो दिख रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारे स्टील का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिपेंड करता है। ये ऑस्टेनाइट क्या है, ये सीमेंटाइट क्या है, ये हम एक एक चीज़ें स्टडी करेंगे, बट अभी हम सिर्फ 3 चीज़ें स्टडी करेंगे, 4 चीज़ें, फेजेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो अल्फा फेराइट इज़ मैग्नेटिक बिलो 768 डिग्री सेल्सियस, ऑस्टेनाइट इज़ नॉन मैग्नेटिक, डेल्टा फेराइट इज़ ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक, ओके। नाउ दिस वॉज अबाउट फेजेस। फेजेस भी बोलने के बाद सिंगल जो फेजेस है सेपरेट फॉर्म में, जैसे ये गैमा है, जैसे ये अल्फा है, ये डेल्टा है,